Welcome students. आज के सेशन में we'll discuss the things related to the respiratory physiology, especially the start from the mechanics of the respiration, as we have discussed earlier, but giving you a recap of that. So if you can see the diagram which is presented over here, can you see it? ये diagram जो है वो आपके सामने visible है, बेहतर तरीके से नजर आ रही है. ठीक है, जरा सा मैंने इसको बड़ा करने की कोशिश की है. ठीक है, you can see over here कि in the resting position you can see the atmospheric pressure never changes from the resting position in the inspiration and as well as the expiration. अमाद अली शाहिद कह रहे हैं कि उनको नजर नहीं आ रही. क्या वाकई सारे स्टूडेंट्स को ये पिक्चर नजर नहीं आ रही? If you can see, please answer on chat ताकि मैं आगे फिर चलूं. जी, तो बेटे ये नजर आ रही है, विजिबल है. जिनको विजिबल नहीं है वो अपने रिफ्रेश कर ले अपने कनेक्शन को ताकि उनको नजर आती रहे. ठीक है, अच्छा, तो आप यहाँ पे देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट 760 760 760. यहाँ पे देखिए कि इंट्राप्लूरल या इंट्रा एल्वुलर प्रेशर जो है ये जब लंग्स के साइज की इंक्रीमेंट की वजह से ये जो रेस्टिंग के अंदर डायफ्राम अपने डूम शेप में, लंग्स अपने नॉर्मल साइज के अंदर है और कोई एयर ना आ रही है ना जा रही है. लेकिन फिर क्या होगा कि जब ये चेस्ट कैविटी एक्सपेंड होगी और नॉर्मल इंस्पायरेशन में देखें ये डायफ्राम कैसे फ्लैट हो गया एंड the rib cage expands, and with the pleural membrane the lungs are attached to the internal thoracic wall. They also get expand, and increase in the lung volume will decrease the pressure and decrease the pressure from the 760 mark towards the 758 mark. Whereas the intrapleural pressure, it is again negative. It is normal at normal circumstances. It is 756, and it helps in the adherence of the lungs with the thoracic cavity wall, internal wall. So ये it decreases by 2 milligram of mercury, that is 754, and because of that, there is a concentration gradient produced, and the air flows from the atmospheric pressure 60 millimeter of mercury from outside towards the lungs. Okay, और यहाँ पे ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस जो है वो होगा. ऑक्सीजनेशन प्रोसेस will be carried out over here, and then after the inhalation, that was the due to the contraction of the external intercostal muscles in the diaphragm majorly, then followed by a exhalation period in which the diaphragm regains its dome shape position and the external intercostal muscles relaxes. That decreases the rib cage, thoracic cavity wall, and the size of the lung is now again decreased. However, when the size of the lung decreases according to the Boyle's law, the pressure will be increased, and it increases from the 762 mark, and then the air, that is a concentration gradient, again created higher on the lung side and smaller on the outside environment. So the air flows from the lungs outside the body into the environment, and the intrapleural pressure to withstand that again comes from 754 to the 756 mark, and then this cycle is again uh, uh, managed by the resting period, and then inspiration, expiration, rest, inspiration, expiration, rest. The cycle goes on. So it means that it is a process, and that process is generally controlled by the concentration of the carbon dioxide in the blood and the bicarbonate buffer system. More the carbon dioxide, more will the rate of the respiration, more will be the depth of the respiration. When you are in mental and physical stress, more and more energy is used, more and more carbon dioxide produced, more and more carbon dioxide needs to get out, more and more oxygen needs to get in. So for that reason, we have two centers in the medulla oblongata. There is a respiratory center, apnoestic center, uh, pneumotaxic center, apnoestic center and pneumotaxic center, and these centers control the patterns of respiration, that is the rate of the respiration as well as the depth means that how much air can you handle in your lungs. It is the depth. Okay, कितना गहरा सांस आप ले सकते हैं, ये डेप्थ है. और किस रेट से लेते हैं, जैसे नॉर्मल रेट इज 12 ब्रेथ्स पर मिनट. ओके, अगर ये बढ़ जाती है और बढ़ती है, इट मे इंक्रीज टू 25 ब्रेथ्स पर मिनट, मे इंक्रीज 12 से लेके और 25 तक नॉर्मल है. 25 के ऊपर नाउ इट इज अ शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, और ये ऐसी भी हो सकती है कि 1 ब्रेथ पर मिनट. ओके, 1 ब्रेथ पर मिनट इन 60 ब्रेथ, ये भी हो सकता है. तो देयर इज अ ह्यूज कैपेसिटी ऑफ द लंग्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द बॉडी
ये जो ब्रीदिंग रेट है और डेप्थ है दैट कैन बी इंक्रीज्ड। अगेन यहीं पे देखिए कि एल्वुलर प्रेशर नेक्स्ट डायग्राम पे ये क्या हुआ कि पहले जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 कांस्टेंट है, एल्वुलर प्रेशर जो है ये जो है वो इंक्रीज होता है टू 762 ड्यूरिंग द expiration. During normal quiet inhalation, the diaphragm and the external intercostal muscles contract. During labored inhalation, it has been accompanied by the force of contraction of other muscles, sternocleidomastoid, scaleness and pectoralis minor. ठीक है, and the thoracic cavity size increases in the size of the lungs, and volume of the lungs expand and the pressure drops from 760 to 758, and then normal quiet exhalation, diaphragm and external intercostal muscles relaxes. But if you want to have a forceful exhalation, forceful inhalation followed by the forceful exhalation, then the additional muscles will comes into action, that is the rectus abdominis also, and internal intercostal muscles, transverse oblique abdominal muscles. So these muscles are additional muscles. Okay, and then with the contractions of these muscles, the thoracic cavity size decreases, lungs elastic recoil is there, size decreases, and the pressure reaches to the 762 millimeter, and the air moves out from the body. So air pressure difference is the air flow drive. So three other factors affect rate of the flow of ease of pulmonary ventilation. So this is important, that other than the atmospheric pressure and other than the pressures within the lungs and within the pleural cavity, there are three important factors that are majorly responsible to assist the process. For example, starting from the third, airway resistance. What is that airway resistance? It is the diameter of the bronchioles. More the diameter, easy will be the fluency of the air within it, and lesser the diameter, that is bronchoconstriction. So it's difficult for the air to flow from the atmosphere towards the lung and from the lungs towards the atmosphere. So it means that all those agents and chemicals and neurotransmitters and hormones that are going to ultimately increase the diameter, that ease of the breathing, and those who are going to decrease the diameter, that is bronchoconstriction, will create shortness of breath and difficulty in the breathing. Sympathetic nervous system, adrenaline is going to increase the airway diameter, and resistance will be less, and histamine and acetylcholine in parasympathetic system will decrease the diameter, and with the interplay of both the two, the sympathetic and the parasympathetic nervous system, the normal diameters is regulated. Larger diameter, less resistance, and this is regulated by the upon the bronchioles and smooth muscle tones by the actions of sympathetic and parasympathetic nervous system. Second is the lung compliance. Lung compliance means that amount of the air required to inflate the air. Let's suppose an example that if the lungs have high compliance, means high elasticity, high elastic fiber, high elastic protein. So a smaller amount of the air is sufficient to inflate the lungs. However, if because of reasons like COVID pneumonia, fibrosis is there. What is fibrosis? Fibrosis is actually a chronic inflammatory repair process in which after the chronic inflammation, the body repairs by the fibroblastic cells, but those cells which are repair are actually scar tissues, and they lack some, not totally, but partially lack the functionality. They are thick, and they are not doing the job 100%. Maybe they are doing the job 50%, 60%. So what happened after fibrosis in the lungs? It will be difficult to inflate the lungs. So for example, that the if you use a thin walled balloon, it is easier to inflate a thin wall balloon. However, if the thick walled balloon is there, it is very difficult. आप फुटबॉल के ब्लैडर को जो जो कि बड़ा सा होता है उसको मुंह से नहीं फुला सकते. यू रिक्वायर प्रेशराइज एंड कंप्रेस एयर फॉर दैट, बट यू कैन inflate the balloon, simple balloon here, you can inflate it by your air pressure created by the mouth. तो ये लंग कंप्लायंस है. हाई लंग कंप्लायंस मींस द लंग्स एंड चेस्ट वॉल एक्सपेंड इजीली. वहां पे इलास्टिसिटी ज्यादा, इलास्टिक प्रोटीन से ज्यादा है. और इसके अलावा द सेकंड थिंग इज द सरफेस टेंशन इफेक्ट. सरफेस टेंशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट because that surface tension is required for the elastic recoil. That surface tension is required to avoid the collapse of the alveoli at the time of exhalation. Okay, so it is very important that surface tension allows the alveoli to attain the smallest possible diameter. However, अगर surface tension ज्यादा होती है, it will
decrease the lung compliance. It will help create problem excessive अगर जो है वो surface tension होगी. So for that reason we have type 2 pneumocytes. Type 1 pneumocytes are those cells which are cells that line the alveolar wall, जिसे हमने पहले भी तस्वीर में भी डिस्कस किया बताया. और सेकंड होते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट्स दैट आर सेल दैट सिक्रीट द सर्फेक्टेंट्स. ठीक है, मैं जरा सा पीछे जा रहा हूं और मैं आपको ये टाइप 1 और टाइप 2 न्यूमोसाइट जो है वो इस फिगर में भी दिखा रहा हूँ. ओके, यू कैन सी ओवर हियर, ये जो हमने ये जो एल्वुलर सैक का एक एक्सटेंडेड तस्वीर यहाँ पे गिवन है. यू कैन सी द लाइनिंग ऑफ the C-shape alveolus structure is being made by the type 1 pneumocyte. ये type 1 pneumocyte है. और ये जो नजर आ रहा है blue here, these are type 2 pneumocyte that release the surfactant. और ये नजर आ रहा है मैक्रोफेज. और ये साइड बाय साइड इसकी ये कैपिलरी वॉल स्ट्रक्चर है जहां पे ट्रांसपोर्टेशन हो रही है. दिस इज द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. जैसे मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है कैपिलरी एंडोथेलियम, कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन और एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड टाइप 1 एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन और एपिथेलियम. तो ये जो चार चीजें इनके दरमियान से फिर डिफ्यूजन होती है, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द blood from the alveolus, diffusion of carbon dioxide from the capillary into or from the RBCs into the alveolus. तो ये इस तरीके से होता है. तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा. टाइप 2 न्यूमोसाइट्स आर दोज न्यूमोसाइट्स व्हिच सिक्रीट सर्फेक्टेंट. सर्फेक्टेंट क्या होता है? लेसिथिन बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं दैट डिक्रीजेस द सरफेस टेंशन बिटवीन द इमिसिबल टू फेज ऑफ द इमिसिबल लिक्विड. और यहाँ कौन सा फेज है? एयर और वाटर का फेज है. तो मोर द surfactant effect, more will be the diffusion of the gases. ये वाइस वर्सा है, यानी कि सरफेस टेंशन और सर्फेक्टेंट का इफेक्ट वाइस वर्सा है. ठीक है. Surfactants are surface active agent. Surface active agent क्या करते हैं? That actually increase the miscibility of two immiscible things. तो water और air जो है ये या जो है ज्यादा miscible नहीं होते और diffusion मुश्किल होती है. वो gases जो dissolve होती है air में उसकी जो है वो प्लाज्मा के अंदर या water के अंदर. तो होता क्या है? ये water कौन सा body की? ये mucus है जो इसके अंदर मौजूद है और blood plasma है. तो होता क्या है कि whenever there is surfactant present, तो वो जो एयर के अंदर डिफ्यूज गैसेस है उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी हो जाती है. तो ये जो चीज है वो अपोज होती है सरफेस टेंशन से. आपको ये भी पता है कि सरफेस टेंशन जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर भी होती है जिसकी वजह से वाटर का मिनिस्कस जो है वो बनता है. तो वो रोकती है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को. लेकिन जब सरफेस टेंशन कम हो जाती है, जैसे आपने इस्तेमाल देखा होगा डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो बबल फॉर्मेशन करवाते हैं क्योंकि वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं. ठीक है. तो वो इस तरीके से अगर आपने पानी में नॉर्मली हाथ चलाएं तो बबल बनते हैं, फूट जाएंगे. लेकिन अगर आप डिटर्जेंट डाल दें और फिर ये करें तो बबल ट्रैप हो जाएंगे, झाग बन जाएगा. तो दैट इज बिकॉज दो डिटर्जेंट्स आर सर्फेक्टेंट. वो सरफेस जो टेंशन होती है बिटवीन द टू मिक्स्ड लिक्विड उसको डिक्रीज कर देते हैं. एयर कैन entrap. तो यही चीज फिनोमेना बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर फॉर द ट्रैपमेंट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल ये सरफेस एक्टिव एजेंट करता है जो कि हमारे पास जो है वो लेसिथिन बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं. तो ये तीन चीजें हैं जो कि हमारी जो पल्मोनरी वेंटिलेशन में असिस्ट करती है. सरफेस टेंशन, लंग कंप्लायंस एंड द एयरवे रेजिस्टेंस. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे मैं आपको जो है एक वीडियो जो है शेयर करना चाहूंगा. ठीक है. यहाँ पे मैं आपको एक न्यूज शेयर करना चाहूंगा वीडियो की. उस वीडियो को देखें और इससे रिलेटेड जो भी सवाल वगैरह होगा वो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा. तो स्टूडेंट्स, क्या अब तक नई शेयर हो गई है? अभी भी पार्टिसिपेंट्स कम है. मेरे पास जो है ना 67 पार्टिसिपेंट्स नजर आ रहे हैं. तो देखिएगा ये पार्टिसिपेंट्स कम क्यों हैं. और ये जरा मुझे प्लीज बता देंगे कि अब तक वीडियो शेयर हो गई है. न्यू स्क्रीन शेयर हो गई है. ओके, अब इसको देखें, इसको समझें और देखें क्या होता है. Pulmonary ventilation, commonly referred to as breathing, is the process of air flowing in and out of the lungs during inspiration and expiration. The air movements are governed by the principles of gas laws. Basically, air flows from higher to lower pressure. Pressure within a cavity increases when its volume decreases, and vice versa. Volume of a given amount of gas increases with increased temperature. At rest, in between breaths, the pressure inside the lungs, or intrapulmonary pressure, equals the pressure outside of the body, or atmospheric pressure. When discussing respiratory pressures, this is generally referred to as a relative pressure of zero. This is because what matters is the difference between the two pressures, not their absolute values. Thus, a negative pressure is a pressure below atmospheric,
while a positive pressure is above atmospheric. The lungs are covered in a double-layer membrane which forms a thin space surrounding the lungs called the pleural cavity. The pressure within the pleural cavity, or intrapleural pressure, is normally negative. This negative pressure acts like a suction to keep the lungs inflated. If this becomes zero, such as in the case of pneumothorax, when the chest wall is punctured and the pleural cavity has the same pressure as the outside air, the lung would collapse. Pulmonary ventilation is achieved by rhythmically changing the volume of the thoracic cavity. During inspiration, the diaphragm and the external intercostal muscles contract, expanding the thoracic cavity and the lungs. This increase in volume results in a decrease in pressure, causing outside air to flow in. Another factor that helps to inflate the lungs is the warming of the inhaled air. This effect is most notable on a cool day when the temperature outside is significantly lower. The inhaled air increases in volume as it warms up inside the body and inflates the lungs, further facilitating inhalation. While inspiration requires muscular contraction and hence energy expenditure, expiration during quiet breathing is a passive process. As the diaphragm returns to its original position and the muscles relax, thoracic and lung volumes decrease and pressures increase, pushing air out of the lungs. Quiet expiration relies therefore on the elasticity of the lungs and ribcage, their ability to spring back to the original dimensions. Conditions that reduce pulmonary elasticity, such as emphysema, can cause difficulty exhaling. Deep breathing requires more forceful contractions of the diaphragm, intercostal muscles, and involves additional muscles to produce larger changes in the thoracic volume. Deep expiration, unlike quiet expiration, is an active process. Another factor that affects ventilation is the resistance to airflow, which exists within the lung tissues and in the airways. Lung compliance refers to the ease with which the lungs expand. Healthy lungs normally have high compliance, low resistance, like a thin balloon, easy to inflate. Lung compliance is reduced when the lungs become stiff, in conditions that cause scarring of tissues or fibrosis. In this case, the lung turns into a thick balloon, harder to inflate. Diseases that narrow the airways, such as asthma, increase resistance, making it harder to breathe. The airways may also dilate or constrict in response to various factors. For example, parasympathetic stimulation and histamine typically narrow the bronchioles, increase resistance, and decrease airflow, while epinephrine, a hormone released during exercises, dilates bronchioles and thereby increases airflow. जी स्टूडेंट्स, आपने ये वीडियो देखी, कितनी इंटरेस्टिंग थी, कितनी समझ में आई, चीजें क्लियर हैं आप लोगों को? और कोई सवाल करना है तो प्लीज बताएं, रिस्पॉन्ड इन चैट। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेस। अंदाजा हो रहा है कि आपको इस एनिमेशन से बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और ये आपके पास एक परमानेंट रिकॉर्ड भी आ गया है। मैं शेयर करूंगा इसको जब वीडियो रिकॉर्डिंग को, तो आपके पास एक परमानेंट रिकॉर्ड होगा। और कहते हैं ना कि वन पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड। तो वीडियो एनिमेशन बेस्ट तरीकाकार है कंसेप्ट्स को जहन में समझने और मेमोराइज करने का। बट आई नीड कि आप इस पे से गेन करें, आपको कंसेप्ट समझ में आए। ठीक है, अच्छा, अब ये जो कह रहे हैं, एक सवाल आया है मोहम्मद अबू बकर का, कि ऐसा कब वो इंक्रीज अमाउंट ऑफ फ्लूइड हो जाएगा प्लूरल कैविटी में तो क्या होगा? तो दैट आल्सो चेंजेस द प्रेशर। जब ये प्रेशर चेंज हो जाएगा और ये नहीं होगा तो ये फिर लंग्स को इफेक्ट करेगा, और अगेन जब प्लूरल फ्लूइड ज्यादा होगा तो लंग्स को इन्फ्लेट होने में मुश्किल होगी। दैट इज द सेम केस कि अगर हीमोथोरिक्स हो जाए, हीमोथोरिक्स मींस के स्टैबिंग या किसी नतीजे में उस प्लूरल फ्लूइड के अंदर जो है वो ब्लड भर जाए, तो अगेन ये जो ब्लड भर जाएगा इस प्लूरल कैविटी के अंदर, दैट विल क्रिएट अ डिस्टरबेंस इन द इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ऑफ द लंग्स, और लंग्स कोलैप्स करने की तरफ जाएंगे, उनकी फंक्शनैलिटी उनकी बहुत इफेक्ट होगी। तो यकीनन ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। उसमें न्यूमोथोरिक्स का बताया गया कि अगर न्यूमोथोरिक्स होगा और प्रेशर एयर आ जाएगी और
पंक्चर हो जाते हैं, अगर फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ एनी रीजन एयर प्रेशर अगर सेम हो जाएगा यानी कि बाहर के आउटसाइड एयर का और लंग्स का, तो फिर वो लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे। और हीमोथेरिक्स में ये होता है कि प्लूरल कैविटी के अंदर अगर ब्लड भर जाएगा तो भी उससे लंग्स जो है वो डैमेज और कोलैप्स हो जाएंगे। समझ में आया आपको? वेरी गुड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज की बात भी आपसे मैंने प्रीवियसली की थी, लेकिन मैं अभी दोबारा और बता देता हूँ। लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज जो होते हैं, दीज आर एक्चुअली द मेजर्स थ्रू विच यू कैन आइडेंटिफाई द फंक्शनिंग ऑफ द लंग्स। हेल्दी के लिए हमारे पास रेंजेस होती हैं, अगर इससे कम या ज्यादा होती है इट मींस दैट द लंग्स आर नॉट फंक्शनिंग वेल। ज्यादा तो होती हैं अगर लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, तो वो तो योगीज की, एरोबिक्स की, एथलीट्स की होती है, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन अगर लंग वॉल्यूम कैपेसिटीज डाउन होती है डिजीज कंडीशन के अंदर, टीबी के अंदर कम होंगी, एस्थमा के अंदर कम होंगी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में भी कम होंगी, ठीक है। तो इसको चेक करने के तरीके, अब इसमें कुछ चीजें दी हुई है। मिनट वॉल्यूम, व्हाट इज द मिनट वॉल्यूम? द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड इन नेचुरल ब्रेथ। नॉर्मल हेल्दी एडल्ट्स एवरेज 12 ब्रेथ्स पर मिनट, 12 से लेकर 20 तक आराम से हो सकती है, 25 तक भी हो सकती है। और नॉर्मली हम जो है चूंकि इन नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग वी आर टेकिंग 500 ml ऑफ द एयर इनसाइड एंड आउटसाइड, तो मिनट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू द 12 ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय 500 ml, तो 6 लीटर पर मिनट। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि इन स्पेसिफिक कंडीशंस ये बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो जो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है वो कैसे, इसको हम देखेंगे स्पायरोग्राम से। व्हाट इज स्पायरोग्राम? इट इज अ टेस्ट, स्पायरोमीट्री होती है, इसके थ्रू जो है वो टेस्ट किया जाता है और जो है वो स्पायरोग्राम जनरेट किया जाता है। एंड दैट स्पायरोग्राम जो है ये बताता है what is the capacity of the lung and of the holding the air volumes and capacities. What is the difference between the volume and the capacities? जो volumes हैं, there are single non overlapping fragments of the air that can be handled by the lungs, जबकि capacities उसके सम को कहते हैं। तो थोड़ा सा क्विकली बता दूं, टाइडल वॉल्यूम 500 ml ऑफ द एयर, ये टाइड की फॉर्म के अंदर है ये, ठीक है। तो ये वॉल्यूम है। फिर उसके बाद आता है कि इसके अबव जो होता है, इट इज नोन एज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तकरीबन जो है ये टोटल अगर आप देखिए तो कम से कम 1900 ml और ज्यादा से ज्यादा 3100 ml है, रफली इसको 2.5 लीटर के आसपास लिया जाता है, ठीक है। दैट इज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, लेकिन मैक्सिमम ये 3 लीटर भी हो सकता है, ठीक है। 2 से 3 लीटर के दरमियान, यानी कि रफली 2.5 लीटर एवरेज में। उसके बाद फिर तीसरा दैट इज एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम, जो टाइडल वॉल्यूम के नीचे जितना मैक्सिमम आप एयर जो है वो निकाल सकते हैं फ्रॉम आवर लंग्स फोर्सफुल एक्सपायरेशन करके। ये पहला वाला था फोर्सफुल इंस्पायरेशन करके, दूसरा वाला था फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो ये टाइडल वॉल्यूम से नीचे जितना भी है ये कहलाता है एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम। तकरीबन 1100-1200 ml होता है, 700 से लेकर 1200 ml, रफली 1 लीटर इसको लेते हैं। और उसके बाद दैट एयर दैट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड आउट फ्रॉम द सिस्टम ऑलवेज ऑलवेज रिमेन, जो कि जिसकी वजह से लंग्स जो है वो हमेशा इन्फ्लेटेड भी रहते हैं। और ये कब होता है? ये जो फर्स्ट क्राई ऑफ द बेबी के बाद जो है वो एक दफा रेजिडुअल एयर जब इनेबल हो जाती है फिर सारी जिंदगी रहती है। बच्चा छोटा होता है तो ये कम होती है, या बड़े अडल्ट हो जाते हैं तो अडल्ट के लिए रेजिडुअल है तकरीबन 1 लीटर के एवरेज में 1100 से 1200 ml जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये तो हो गई 4 वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। उसके बाद कैपेसिटीज आ जाती है। कैपेसिटीज आर सम क्या है जनाब, कि फॉर एग्जांपल inspiratory capacity is the sum between the tidal volume and the inspiratory reserved volume। अच्छा सवाल आया है मोहम्मद खजान का, pulmonary edema also occur due to too much pleural fluid? yes yes you are right, प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, प्लूरल इफ्यूजन, जिसकी वजह से जो है पल्मोनरी एडिमा होने के चांसेस और लंग्स अपने ही पानी में डूब जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा म्यूकस और एयरवेज भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक तो ये कि प्लूरल फ्लूइड जो है उसके अंदर सेकंडली बड़ा इंपॉर्टेंट है कि म्यूकस जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नरिशमेंट एंड फ्लोरिशमेंट, और उसके लिए नॉर्मली प्रोटेक्शन के लिए। तो जब भी जो है वो एक्सेसिव जो है ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन के साथ फ्लूइड इंक्रीज हो जाता है, म्यूकस विद इन द एयरवे पैसेजेस, यानी कि एक तो प्लूरल एरिया है लेकिन दूसरा पैसेजेस है, ब्रोंक्यूल्स है, उसमें जब इंक्रीज हो जाता है म्यूकस, तो उसकी वजह से फिर जो है प्लूरल एडिमा वर्सन हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों जगह पर, सिर्फ एक जगह पे नहीं। आगे देखिए मैं कैपेसिटीज की बात करता हूं। इंस्पायरेटिक कैपेसिटी सम बिटवीन द टाइडल वॉल्यूम एंड द इंस्पायरेटिक रिजर्व वॉल्यूम, ये तकरीबन जो है वो 3600 के मैक्सिमम पर है, 2400 के मिनिमम पर है, ठीक है। तो रफली इसको हम 3 लीटर्स के आसपास लेते हैं। तो इसके बाद वाइटल कैपेसिटी, वो जो हम अपने विल से एयर स्टोर कर सकते हैं और एक्सेल कर सकते हैं, दैट इज एक्सेलेशन। ये सम होता है टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटिक रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटिक रिजर्व वॉल्यूम का। फिर टोटल लंग कैपेसिटी रेजिडुअल एयर को मिला ले तो फिर हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटी आ जाती है, इट इज रफली 6 लीटर, ठीक है। कम से कम 4.2 लीटर और उसके बाद फिर ज्यादा से ज्यादा 6 लीटर है।
जो चेंजेस होती है मैंने आपको बताया, इट इज बिकॉज कि ये नॉर्मल रेंजेस हैं। अब फीमेल है, फीमेल्स की शॉर्ट स्टेचर होता है और उनके लंग्स का साइज छोटा होता है, तो उनको कम एयर में उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। जो एथलीट्स होते हैं, एयर हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ द एथलीट्स, यंग पर्सन्स, मेल पर्सन्स, टॉलर पर्सन्स आर मोर देन द शॉर्टर पर्सन्स, फीमेल्स एंड डिजीज पर्सन्स एंड नॉन एथलीट्स, ठीक है। और एजेड के अंदर भी एयर हैंडलिंग कैपेसिटी कम होती है। तो ये नॉर्मल इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। अच्छा, फिर टोटल लंग कैपेसिटी के बाद देखिए फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, द सम ऑफ द एक्सपायरी रिजर्व्ड वॉल्यूम एंड द रेजिडुअल वॉल्यूम। और ये जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, ये आपको डिजीज कंडीशन में खासतौर पे सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की इसमें बड़ा काम आती है कि रेजिडुअल वॉल्यूम इसमें रेज हो जाता है और एक्सपायरी रिजर्व्ड वॉल्यूम कम हो जाता है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए काम आती है। यस, अगर लंग पंक्चर होता है तो उसके कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर प्लूरल जो है वो कैविटी डेफिनेटली बाहर से जब वो की जाएगी, इसको स्टैबिंग की जाएगी, गन शॉट होगा और लंग्स में डायरेक्ट लगेगा, तो आपको सबसे पहले तो प्लूरल कैविटी जो है वो प्लूरल डैमेज हो जाएगी, और उसके बाद फिर वहां पे जो है वो हीमोथोरिक्स एंड न्यूमोथोरिक्स के चांसेस होंगे, जिसकी स्थिति में लंग कोलैप्स हो जाएगा। और जो लंग कोलैप्स होगा, दूसरा अल्टरनेट लंग्स कैन वर्क थ्रू, बट द लंग्स डेफिनेटली इट विल कोलैप्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं। लंग्स वॉल्यूम, अच्छा ये जो मैंने बताया इसी की डिस्क्रिप्शन है, तो विल गो फास्टर ऑन दैट। ओनली 70% ऑफ द टाइडल वॉल्यूम रीचेस द रेस्पिरेटरी जोन। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मली 500 ml इफ नॉर्मली इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड, ओनली 350 ml ऑफ इट इज कंटेनिंग द फ्रेश एयर, और बाकी वही एयर होती है जो कि आपके इंटरनली रीयूज हो जाती है। तो 30% रिमेन्स इन द कंडक्टिंग जोन, और यानी कि जो जो एयर लेते हैं 30% कंडक्टिंग जोन में रहती है जहाँ पे कुछ भी एयर एक्सचेंजेस नहीं होती, एंड द रिमेनिंग 70% विल रीच टू द रेस्पिरेटरी जोन। ये रेस्पिरेटरी जोन हुआ है जहाँ पे एक्चुअल exchange of the gases is going on. So anatomic respiratory dead space are known as those spaces that in which the conducting division is there and no active exchange of the gases is going on. और फिर alveolar ventilation rate है, वॉल्यूम ऑफ द एयर पर मिनट दैट एक्चुअली रीचेस द रेस्पिरेटरी जोन। तो अगर हम ये बात करें कि टाइडल वॉल्यूम 500 था, लेकिन एक्चुअल निकालना चाहे कि हाउ मच एयर रीचेस टू द वेंटिलेशन रीजन, यानी कि रेस्पिरेटरी सेगमेंट कितनी पहुंचती है पर मिनट, तो ये हो जाएगा 350 मल्टीप्लाई बाय 12 ब्रेथ्स जो आप नॉर्मल लेते हैं, तो ये कम हो जाएगा। इंस्पायरेटरी रिजॉर्ट वॉल्यूम क्या, टेकिंग ए वेरी डीप ब्रेथ, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए जनाब। एक्सपायरेटरी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में कहते हैं कि दैट अमाउंट ऑफ द एयर दैट कैन बी हेल्ड इन द लंग्स ओवर द टाइडल वॉल्यूम, मैक्सिमम एयर ओवर द टाइडल। और एक्सपायरेटरी रिजर्व जब नॉर्मल एयर एक्सहेल कर दी थी, उसके बाद जितनी फोर्सफुल एक्सपिरेशन करके निकालते हैं, ठीक है, इनहेल नॉर्मली एंड एक्सहेल फोर्सफुली, वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में, रेसिडुअल वॉल्यूम एयर रिमेनिंग आफ्टर द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सहेल्ड। अच्छा, एक सवाल और किया इन्होंने कि बट यूनिट एल्वोलाई होता है जो सेक्स होते हैं, जो सर वो सिर्फ उस एरिया के सेक्स डैमेज नहीं होते और ये पूरा लंग डैमेज होता है। देखिए बात समझे, ये जो एल्वोलाई सेक्स है और एल्वोलाई डक्ट है, दीज आर वेरी स्मॉलर यूनिट्स, ठीक है। और ये जो है, जब आपको पता है कि सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू फॉर्म द टिश्यू, टिश्यू वर्क्स टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गन। अभी हम ऑर्गन की बात करें, लंग एक ऑर्गन है, और लंग्स को इन्फ्लेट और डिफ्लेट होने के लिए दैट रिक्वायर्स द इंटीग्रल सपोर्ट ऑफ द प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब वो प्लूरल मेम्ब्रेन जो जो उसके अंदर नेगेटिव प्रेशर है, जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में लंग्स को बांध के रख रहा है, जोड़ के रख रहा है विद थोरेसिक कैविटी, अगर वो जो है वहां से अलग हो जाएगा, तो उसके बाद फिर लंग्स जो है वो ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन ना इन्फ्लेट होंगे ना डिफ्लेट होंगे उस तरीके से। नतीजे क्या निकलेगा, उसको कहते हैं लंग्स का कोलैप्स हो जाना। तो सिर्फ ये एल्वेलस की कोलैप्स की बात नहीं हो रही है, ये लंग्स जो है ये स्ट्रेस्ड मटेरियल है। यानी आप ये समझिए कि ये बैलून था जो फुलाया हुआ था, जब ये एयर निकल जाएगी उसमें से, तो वो वापस अपनी ओरिजिनल सिचुएशन के अंदर आ जाएगा। कंडक्टिंग जोन्स और कंडक्टिंग डिविजन्स वो होते हैं जहां पैसेज वे ऑफ एयर होते हैं, नो एक्टिव एक्सचेंजेस ऑफ द एयर अकर इन द कंडक्टिंग जोन, वो होता है रेस्पिरेटरी जोन में। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के ऊपर ऊपर जो होता है, यानी कि हमने बात की थी रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक, तो पूरा ट्रैकिया, ब्रोंकस, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, टर्मिनल, ये कंडक्टिंग जोन है। रेस्पिरेटरी जोन शुरू होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वुलर सैक, एल्वुलर डक्ट और एल्वुलस, वहां पे ऐसा ही होता है, ठीक है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे रेजिडुअल वॉल्यूम की बात के लिए, वाइटल कैपेसिटी द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है।
रेजिडुअल वॉल्यूम इज दैट एयर दैट रिमेन्स आफ्टर द एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम एक्सहेल्ड, जो फोर्सफुल निकाल दिया उसके बाद जो रहेगी वो रेजिडुअल वॉल्यूम है। वाइटल कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम, जो हम अपनी व्हील से हैंडल कर सकते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी, इसमें रेजिडुअल ऐड कर दें, इट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ द एयर दैट कैन बी हैंडल्ड और दैट कैन बी स्टोर्ड बाय द लंग्स। अच्छा, एक और सवाल पूछा गया कि इज देयर आल्सो प्लूरल मेम्ब्रेन बिटवीन द लोब्स और जस्ट द होल लंग्स। ये होल लंग्स पे होता है, आउटसाइड कवरिंग होती है इसकी ना। लंग्स पूरा स्ट्रक्चर जो लंग्स का होता है, एक उसके साथ पहली लेयर होती है, फिर फ्लूइड होता है कैविटी वाला, और फिर दूसरी लेयर होती है, और दूसरी लेयर जो है वो जुड़ी होती है थोरैसिक वॉल के साथ। एक्सचेंज ऑफ द गैसेज एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें देखिए नए लॉ आ गए, पहले बॉयल्स लॉ की हमने बात की थी, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डाल्टन्स लॉ। ठीक है, व्हाट इज द डाल्टन्स लॉ? Each gas exchange in a mixture of the gases exerts its own pressure as if no other gas is present। यानी कि एयर में नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है बहुत कम, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, और अदर गैसेज हैं, ये वाटर वेपर्स हैं। सो दे ईच ऑफ द गैस एक्सर्ट देयर ओन प्रेशर। अच्छा, एमन हुसैन कहती है फीमेल एथलीट्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है कंपेयर टू नॉर्मल। नहीं, रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है पर एयर हैंडलिंग भी ज्यादा होती है, क्योंकि फीमेल एथलीट्स ने अपने आप को ट्रेंड किया हुआ होता है, तो उनके जो रिस्पायरेटरी मसल्स हैं और वो ज्यादा फंक्शनल होते हैं, ज्यादा अच्छे होते हैं, ब्रीदिंग की उनकी टेक्निक्स होती हैं। सो नॉर्मल फीमेल्स के मुकाबले में जो एथलीट फीमेल्स हैं उनकी सांस और स्टेमिना ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो ये कॉमन है। ये आप लोग भी अगर सांस की एक्सरसाइजेस करें, यू कैन इजीली होल्ड द ब्रेथ। एक कोई 1 मिनट रुक सकता है, कोई 2 मिनट, कोई 3 मिनट भी रुक सकता है अंडर वाटर। जो डाइविंग होती है इसमें तो 20-20 मिनट की भी रिकॉर्ड है। इंडियन योगास योगी जो करते हैं उसमें तो और इससे भी ज्यादा वो क्लेम करते, तो दिनों का क्लेम करते हैं। So, Dalton's law क्या कहता है? Dalton's law कहता है each gas in the mixture of the gases exerts its own pressure if no other gas is present। So इसका मतलब क्या हो गया कि pressure of the specific gas is partial pressure। ठीक है, तो हम जब इंडिविजुअल गैस की बात करेंगे तो हम प्रेशर की बात नहीं करेंगे, ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द पार्शियल प्रेशर। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जितनी गैसेस मौजूद हैं, द पार्शियल प्रेशर हर गैस का उसके हिसाब से होगा। फॉर एग्जांपल PN2 का मतलब है नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर, PO2 का मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, PH2 का मतलब वाटर वेपर्स का, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। तो ईच गैस डिफ्यूजेस अक्रॉस अ परमिएबल मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू इट्स पार्शियल प्रेशर। यानी जब पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन ज्यादा होगी, जब पार्शियल प्रेशर कम होगा तो डिफ्यूजन कम होगी। ग्रेटर द डिफरेंस फास्टर द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो हमने एक बात की, डाल्टन साहब ने एक बात की कि पार्शियल प्रेशर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो गवर्न करता है हाउ हाउ मच इज द डिफ्यूजन ऑफ द गैस। लेकिन इसमें सिर्फ ये बात नहीं, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस की बात। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द मोस्ट पार्शियल प्रेशर विल बी एक्सर्टेड बाय द नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन 71% है, पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, बट नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी बहुत कम है नाइट्रोजन का, और साइज बहुत बड़ा है नाइट्रोजन के एटम का। तो इट इज नॉट डिफ्यूज नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में इन द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एयर, इट इज नॉट डिफ्यूज्ड इनटू द ब्लड। नहीं होगा। कब होगा? जब ये स्कूबा डाइविंग होगी और नीचे आप पानी की सतह में जाएंगे तो आपको ऑलवेज नोट कि वो प्रेशर बढ़ता चला जाता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे डाउन साइड बढ़ता चला जाता है। उस वक्त नाइट्रोजन जो है वो डिसॉल्व होगी ब्लड में, नाइट्रोजन सिकनेस कॉज करेगी, डिकम्प्रेशन सिकनेस कॉज करेगी, बैंड्स कॉज करेगी और सीनेस इफेक्ट्स देगी। लेकिन नॉर्मल जैसे हम सांस ले रहे हैं, नॉर्मल एयर प्रेशर पर है, हाइट्स पर है, कुछ भी नहीं होगा, नाइट्रोजन डिसॉल्व नहीं होगी। कहाँ होगी? डीप सी में ये डिसॉल्व होगी। जितना नीचे जाएंगे इट डिसॉल्व एज मच एंड कॉज सी बैंड्स एंड कंप्रेशन, डिकम्प्रेशन सिकनेस इस तरह की कॉज करेगी। अच्छा, फिर ऑक्सीजन है, जहाँ ऑक्सीजन बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन अच्छा है लेकिन बड़ा मॉलिक्यूल है, फिर भी ये डिसॉल्व होगा, सॉल्युबिलिटी कम है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन से भी बड़ा मॉलिक्यूल है लेकिन इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, और पार्शियल प्रेशर कम भी है लेकिन फिर भी ये डिसॉल्व होगा। तो इट मींस दैट द पार्शियल प्रेशर इज नॉट ओनली थिंग, but along with the partial pressure the solubility is very important, solubility of the gases। ठीक है, लेकिन जनरली जब हम पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे, एज अ जनरल रूल, द ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ द पार्शियल प्रेशर द फास्टर द रेट ऑफ द डिफ्यूजन। जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है, उसमें होगा। अच्छा, हम ना पूछती है कि ह्यूमिड प्लेसेस में ब्रीदिंग डिफिकल्ट क्यों होती है? बेटे बात ये है कि ह्यूमिड प्लेसेस के अंदर ये होती है कि जो डिसॉल्व ऑक्सीजन जो होती है वो पानी के अंदर थोड़ी सी चली जाती है और फ्री ऑक्सीजन कम रहती है, जिस स्थिति में जो है ना हमें थोड़ा सा लेकिन बहुत माइन्यूट सा फर्क पड़ता है इसके अंदर। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखिए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस इन द इनहेल्ड एयर को बताया जा रहा है। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर जो है ये कितना आ गया जनाब? 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी टोटल है। अब ये 78.6% नाइट्रोजन होती है तो पार्शियल प्रेशर इज 597.4।
टोटल प्रेशर के हिसाब से। ऑक्सीजन का कितना है, ये 21% होती है, एग्जैक्टली 20.9, तो ये 158.8। वाटर वेपर्स का कितना है, ये 0.004, ये तकरीबन होते हैं 0.4%, तो इसका जो हो गया आपका 3 मिलीमीटर है। और 0.004% कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये 0.3 हो गया। अदर गैसेस, नोबल गैसेस वगैरह जो रियर है 0.5, तो ये सब मिला के 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है PO2 एंड PCO2। ठीक है, PO2 कितना है 158.8 और PCO2 कितना है 0.3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं, जो कि आज की हमारी लास्ट स्लाइड होगी। जी स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है, आपके सवाल आया है ब्रोंकियो कंस्ट्रक्शन में लीड टू एस्थमा अटैक। यस, यस, एस्थमा में ब्रोंकियो कंस्ट्रक्शन होती है मेजरली बिकॉज ऑफ द नरिंग ऑफ द एयरवे पैसेजेस, जनरली बाय द रिलीज ऑफ द हिस्टामिन एंड द एसिटाइलकोलिन। ठीक है, तो हम अपनी अब नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं, लास्ट स्लाइड पे, आज की लास्ट स्लाइड पे। ठीक है, और यही बताइएगा स्टूडेंट्स की आज की क्लास समझ में आई, आपको चीजें आगे की तरफ गई। हेनरीज लॉ, ठीक है, हेनरीज लॉ क्या है, क्वांटिटी ऑफ द गैस डिसॉल्व इन द लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस एंड सॉल्युबिलिटी। तो डाल्टन ने सिर्फ पार्शियल प्रेशर की बात की थी, लेकिन उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि पार्शियल प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करेगी हर गैस इंडिविजुअल इफ देयर इज नो अदर गैसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर ऑफ द गैसेस। जैसे एयर मिक्सचर है, तो पार्शियल प्रेशर जो है वो हर गैस अपना एक्सर्ट करेगी, जैसे दूसरी गैस मौजूद नहीं है, लेकिन सम जो होगा वो सबका मिला के होगा। सम मैंने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया। हेनरीज लॉ ये कहता है कि डिसॉल्व अगर होने किसी गैस को लिक्विड में, मीडियम में, तो इट डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर एंड इट डिपेंड्स ऑन द सॉल्युबिलिटी एज वेल। तो हायर द पार्शियल प्रेशर ओवर अ लिक्विड, हायर सॉल्युबिलिटी, मोर गैस विल बी द सॉल्यूशन। कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो रही है ब्लड में, लेकिन ज्यादा हो रही है आराम से, क्यों, इसलिए कि इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, ऑल्दो कि ये बड़ा कंपाउंड है। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है वो डिसॉल्व नहीं होगी क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी लो है। लेकिन कब कब होगी, जब हम डीप सी जाएंगे, जिसको हमने डिकम्प्रेशन सिकनेस या बैंड्स का नाम दिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, हमारा टाइम भी क्लास का खत्म हो गया है। 1 मिनट हमारे पास रह गया था, आखिरी वही चल रहा है। तो रिस्पॉन्ड करने के समझ में आया, कुछ सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं, फिर हम यहीं से आपको ये रिकॉर्डिंग भी भेजेंगे। मे बी कि मैं एक एडिशनल रिकॉर्डिंग भी आपके पास भेजूं आगे की, ताकि आप जो है वो पहले से चीजों को समझ सकें।